मैं फिर से बोलती हूँ, अ बिल टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to criminal procedure, bill enacted by parliament in the 74th year of the Republic of India as follows. चलो, अब इसके स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट एंड रीजंस लिखेंगे हम लोग. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 regulates the procedure for arrest, investigation, inquiry, and trial. आदित्य, आप अपना वीडियो ऑन करें और लिखें. एंड ट्रायल, हाँ, ट्रायल of offenses under IPC and under any other law and under any other law governing criminal offenses, governing criminal offenses. मैम एनी अदर लॉ के बाद Any other law governing criminal offenses. The code provides for a mechanism मैम द कोड प्रोवाइड्स for a mechanism for conducting trials in criminal cases, for conducting trials in criminal cases. It gives a procedure. It gives the procedure for registering a complaint conducting a trial and passing an order, conducting a trial and passing an order and filing an appeal against any order, against any order. सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, इसका मतलब समझाती हूँ, डोंट वरी, वेरी वेरी मैम सिंपल. और अगेंस्ट अगेंस्ट एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, उसको ही लेकर यहां पर सीआरपीसी जो था ना, वही कंटिन्यूशन में ये है. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट जस्टिस, जिसको लेकर यहां पर अमित शाह बोल रहा है. फास्ट एंड एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम is an essential is an essential component is an essential component of good governance, of good governance
full stop. However, delay in delay in delay in delivery of justice ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स, क्योंकि लीगल प्रोसीजर्स तो ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हिट एंड रन के केस को लेकर पूछा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, वो कॉम्प्लेक्स है, लीगल प्रोसीजर्स के बारे में पता नहीं है. लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, मतलब इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, हाँ अभिषेक, डोंट माइंड, ओके. लार्ज लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस, केसेस बहुत सारे पेंडेंट है ना, मतलब पेंडिंग है कोर्ट के सामने, इन दी कोर्ट्स. लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन दी कोर्ट्स, कॉमा, लो कन्विक्शन रेट्स, हाँ रेट्स कम हो रहे हैं, लो कन्विक्शन रेट्स, लो लेवल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल of use of technology in legal system, delays in investigation system, delay in investigation system, complex procedures, complex procedures, inadequate use of inadequate use of forensics, forensics are the biggest hurdle, the biggest hurdles are the biggest hurdles in speedy delivery of justice, in speedy delivery of justice, which impacts a poor man, which impacts a poor man adversely in order to address their issues, in order to address their issues, a citizen, a citizens, जैसे हम हैं, मैम दे आर के बाद क्या बोले? क्या क्या क्या, which impacts a ओ, poor man adversely in order to address their issues. पहले पहले से बताऊं क्या मैं? क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो यूज होते हैं, इनएडिक्वेट यूज ऑफ फॉरेंसिक होता है, वहां पर बिगेस्ट हर्डल्स होते हैं उनके लिए कि जो स्पीडी जस्टिस को कैसे डिलीवर कर सके हम लोग, और इसको लेकर जो पुअर मैन है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है, उनको इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर. इन ऑर्डर टू एड्रेस these issues, a citizens centric सी, क्या स्पेलिंग आएगी, CENTRIC, सेंट्रिक, है ना, बराबर है ना. क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर नीडेड
criminal procedures are needed. Next point लिखते हैं. The experience of 7 decades. 7 decades. The experience of 7 decades of Indian democracy. Calls for comprehensive review of our criminal laws. Review of our criminal laws. Ma'am, comprehensive. Comprehensive review of our criminal laws. Including the code of CRPC लिख दो, including CRPC, and adopt them in accordance with the contemporary needs in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. Aspirations of the people. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. The government with the mantra exclamatory, ये ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स को ऑन करो. यहाँ पे ऐसे लाइन लिखाती हूँ कुछ में. सबका साथ लिखना है ये, कॉमा, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. सबका साथ, विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. is committed to ensure speedy justice to all citizens in conformity with these, in conformity या conformity आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहे, इनको मिला के, with these constitutional democratic aspiration जो मोदी जी ने राम मंदिर को इतने जन्मों तक जो नहीं कर पाए और वो उन्होंने कर दिखाया. यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस. The government is committed to make comprehensive review. The government is committed to make comprehensive review
of the framework of criminal laws, to provide accessible and speedy justice to all. एक लास्ट पॉइंट और लिखवाती हूं, इसका पूरा व्यू बताती हूं आपको. इन द व्यू ऑफ अबव, ये सारी चीजों की जो जानकारी मैंने आपको यहां पे दी है, इन द व्यू ऑफ अबव, it is proposed to repeal CRPC 1973. It is proposed to repeal, khatma, khatam, and enact the new law namely Bharatiya BNSS 2023. फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखो. शॉर्ट फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखो. मैं तो इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगी, ठीक है. फुल स्टॉप. इट प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ. मैम, हाँ हाँ is proposed to repeal 1973. हाँ. To enact a new law, namely BNSS 2023. Okay, ma'am. It provides for the use of technology. It provides for the use of technology and forensic sciences and forensic science in the investigation of crime, furnishing and lodging of information, furnishing and lodging of information, service of summons through electronic communication, communication जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे करो. Communication, full stop. Specific timelines have been prescribed for time-bound investigation, trial and pronouncement of judgment and pronouncements of judgments, full stop. Citizen centric approach have been adopted for supply of FIR, to the victim
and to inform them about the progress of investigation, including by digital means, full stop. बस थोड़ा सा ही है. इन केसेस, ज्यादा नहीं लिखा रही हूँ, शॉर्ट ही बता रही हूँ. इन केसेस where the punishment is 7 years or more, in cases where the punishment is 7 years or more, the victim shall be given an opportunity of being heard before withdrawal of the cases by the government, full stop. Summary trial has been made mandatory for petty and less serious cases. Full stop. The accused person may be examined. Through electronic means, like video conferencing, जैसे VC बोलते हैं, like VC. The magisterial system has also been streamlined full stop. ये क्लॉजेस जो है आप लोगों को वेरियस प्रोविजंस ऑफ बिल के बारे में बताएगा. ठीक है, यहां पर आप पढ़ेंगे क्लॉजेस ऑफ वेरियस बिल. ठीक है, यहां पर मैंने अभी तक क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऐसे बोलना तो नहीं स्टार्ट किया है, पर बोलना पड़ेगा. चलो, अब प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूं, द एक्ट मैम कॉल्ड एज. मैम हाँ हाँ हाँ, बिगेस्ट हेड्रल का मतलब क्या होता है? क्या क्या? बिगेस्ट हेड्रल. मेरे को इसकी बात सुनाई क्यों नहीं दे रही है? हेलो. हाँ, सबको बड़ा अड़ंगा. क्या क्या? मुझे तो सुनने थे, वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैम बोल रहा हूँ कि बिगेस्ट हेड्रल जो एक पॉइंट आप लिखवाए थे, बिगेस्ट हेड्रल हाँ, इन स्पीडी लेवल, हर्डल उसका. हर्डल हाँ, हर्डल हेड्रल. हर्डल हर्डल हर्डल. हाँ. बिगेस्ट हर्डल मतलब का मतलब ये होता है
आप लोग हर्डल्स सॉल्व करते हैं, जिसे हम पंक्तियां कहते हैं। आप लोगों को कुछ पंक्तियां मैं कहूं और उसको आप सॉल्व करो कि आसमान में ये हुआ तो परी पे इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं। तो ये हर्डल्स है ना, जो आप लोगों को चीजों में रुकावट डाल, जिसे हम कहते हैं ना कि खेद, जिसे खेद डालने की कोशिश की जा रही है, रुकावट डालने की कोशिश जा रही है, तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए इसे हर्डल्स कहा जाता है। यानी ABCD का पजल खेलते होंगे ना, तो हर्डल्स होते हैं उसमें। आपने वर्ड वाला गेम खेला है कि डैश 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 और उसमें मिसिंग होते हैं वर्ड्स, तो ये हर्डल्स है ना, आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है और उस चीजों को सॉल्व करना होता है। तो ये हर्डल्स है, ये आप लोगों को रुकावट डालता है, आपको खेद डालता है, आपको कहीं ना कहीं उलझाता है उन चीजों को, उसको कहते हैं हर्डल्स। ओके मैम, क्लियर। अच्छा, आप लोगों को ये पैराग्राफ्स में किधर डिफिकल्टी है, जो बात नहीं समझी है? हाँ, फिजूल, बराबर, करेक्ट। आपको कोई डिफिकल्टी है जहां पर आप लोगों को इस पैराग्राफ्स में नहीं समझा है कि यहाँ हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आ रहा है? किसी को डिफिकल्टी है कहाँ पे पैराग्राफ में, उस्मा? यस मैम। नहीं मैम, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कोई डिफिकल्टी नहीं, इसलिए मैंने बहुत आराम आराम से वो चीज ली थी कि आप लोगों को वो पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे ही क्लियर हो जाए कि मैं इस पैराग्राफ में क्या बोलना चाहती हूँ। चलो, द एक्ट इज कॉल्ड BNSS 2023. The provision of this संहिता other than those relating to chapter number सेम है, सेम है। देखो आप, सेम है कि अलग है? हम लोगों ने सिमिलरली, हम लोग जब CRPC पढ़ते थे तो उसमें कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं? आप लोगों को पता है चैप्टर कौन से हैं? हाँ, 9, 11, 12 है क्या उसके अंदर? मैं बताती हूँ, डोंट वरी, आप लोगों को कुछ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा था क्या? सिर्फ यस और नो बताओ, मैं बैठी हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि क्या उसमें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 था क्या? जी मैम था। लेकिन क्या ये चैप्टर नंबर 9, 11, 12 था क्या, कि चैप्टर नंबर 8, 10, 11 था? यस, जो वहां CRPC में आपने पढ़ा था, दैट वाज रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11। अब यहाँ पर कौन सा है? 9, 9, 11, 12। 11, 12। ठीक है, देखो आप, है या नहीं है? ध्यान से देखो, पता चलेगा। ठीक है, अब चैप्टर्स चेंज हो चुके हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन दी जा रही है। द चैप्टर्स व्हाट यूज्ड टू स्टडी बिफोर हैज चेंज टू दिस। तो पहले क्या था? 8, 10, 11। अब क्या है? 9, 11, 12। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि टू दी स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब वहां पे भी हम लोग है ना, ये क्या बोलता है? शल नॉट अप्लाई। ये भी बोलता है शल नॉट अप्लाई। यानी इन लोगों की अपनी, ये लोग भारतीय से कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिया से कनेक्टेड है। इन लोगों की अपनी सारी CRPC, अपनी IPC, ये अपना जाके देखेंगे, अपना कुछ इन लोगों के साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, but the concerned government by notification apply the provisions of any one of them, the whole part of such tribunal as the case may be, which with such supplemental, incidental, consequential modifications may be specified in the notification. अगर ऐसी कोई provision जिनको, उनको कुछ part of या पूरे नागालैंड एरियाज में या वहां के ट्राइबल एरियाज में लगाना है, तो ये बात की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा दी जाएगी। आया बात समझ में? कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी गई है, इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये देखो, सेम सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर 21 जनवरी 1972, जो वहां पे पता जा रहा है कि ट्राइबल एरियाज टेरिटरीज which way before the 21st of January 1972 were included in the tribunal as referred to para number 20 and 6th schedule. अब यहाँ पर para number 20 and 6th schedule of the constitution other than local limits of municipality of Shillong.
अब सिमिलरली आप लोग ने ये सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन सीआरपीसी में पढ़ रखा था, जो आपको कह रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है, जो कि टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, वो इमीडिएटली जो 21 ऑफ जनवरी 1972 उन्हें इंक्लूड किया गया था ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। और पैरा नंबर 20 आप लोगों को मैं बताऊं कि टिकटॉक यहाँ इंडिया में बैन हो गया था। सबको पता है ना टिकटॉक के बारे में, सुना भी होगा। जब हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो सब लोग वीडियोस बनाते थे ना टिकटॉक पे बैठ के, है ना? बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। ऐसे तो बहुत सारे जने यहाँ पे बैठे भी होंगे जो अभी हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल ही दिल में हाँ बोलते होंगे। तो आप लोगों को पता है कि कौन से आसाम में क्या उसको बैन कर दिया गया था क्या टिकटॉक को? आसाम में टिकटॉक चल रहा था या बैन हो गया था? मैम चल रहा था। यस। आसाम के अंदर जो शिलोंग जो भी एरियाज है, वहां पर टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? आसाम इंडिया का पार्ट नहीं है? है मैम। बट है व्हाई इट मैम। वाज नॉट बैन इन टिकटॉक ओवर देयर, और बाकी ऑल ओवर इंडिया को बोला गया था कि पबजी और टिकटॉक बैन हो रहा है। ऐसे मल्टीपल जो भी सिस्टम्स चल रहे थे तभी, जो भी मल्टीपल चीजें चल रही थी उस समय, ये क्यों बोला गया था कि दिस ऑल दिस जो भी चाइना का माल है वो यहाँ पे बंद हो रहा है, ये बोला गया था ना? तो आसाम में क्यों नहीं बैन किया गया था टिकटॉक को? पबजी को क्यों नहीं बैन कर दिया गया था? या शिलोंग में क्यों नहीं किया गया था? क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? मैम क्योंकि वो ट्रेबल एरिया है और उसका स्पेशल लॉ है उसका। हाँ ये तो ठीक है, ट्राइबल एरिया ये तो सब जानते हैं, वहां के स्पेशल लॉज है। वो हमारे लॉ को क्या पढ़ेंगे? उनकी आईपीसी खुद की है, उनकी सीआरपीसी खुद की है, ये तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। बट क्यों 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 वो लोग क्यों टिकटॉक यूज कर रहे थे? और हमारे वीडियोस उनको तब भी दिख रहे थे। हमारे जो वीडियोस थे टिकटॉक के, आसाम वाले तब भी देख रहे थे। और हमें हमारा टिकटॉक की जो डेटा है वो तो ले गया। चाइना तो हमारी टिकटॉक की जो डेटा थी, पबजी की जो भी डेटा थी, वो तो सब ले गया। सोनिया मैम आपको पता है? यस मैम। जो चाइना है, हम लोग जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, हम लोग मतलब जो भी बनाते थे, वो यस। जो भी वीडियोस बनते थे उस समय आसाम में वो वीडियोस को हमारे जो भी वीडियोस थे वो देख रहे थे। और हम लोगों को यहाँ पे बैन लगा के रातों रात वो एप्लीकेशन को हम लोगों को ये बोला गया कि अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल मत करो। इंस्टॉल किया तो आप लोगों के ऊपर ये एक्शन होने वाला है। जी और जी। सिमिलरली हमारा डेटा जो है ऑलरेडी चाइना, आसाम, शिलोंग ये लेके चले गए थे। तो उसको जी लेकर इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। तो हमारा डेटा आज भी उनके पास है ना? हाँ है ना मैम। तो वो जो यहाँ पे बोल रहे हो ना कि आप लोग जो उनके खुद के लॉज है और वो अपने लॉज के साथ में खेलते हैं, वो क्या है मतलब फिर? सिमिलरली जो, डिस्क्रिमिनेशन है ना। हाँ हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है। वो तो है अपनी जगह पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी जी ने क्यों चेंज करा? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो चेंज किया है ना? बट उनको इंक्लूड ऐसे भी तो थोड़ी है। नहीं किया ना मैम। क्या क्या क्या? इंक्लूड भी तो नहीं किया ना उनको। इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को इंक्लूड नहीं करने के लिए हमारी डेटा तो उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करने के लिए दे दी गई ना। मैम अभी तो रिकवरी डिफिकल्टी है ना। वो तो अभी की बात है, ये तो अभी की बात है कि अभी तो नहीं पॉसिबल है। हमारी डेटा तो ऑलरेडी उनके पास है ना। अब तो वो मिसयूज करे, क्या भी करे, कुछ भी करे, फोटोशॉप करे, साइबर लॉ होएगा ही नहीं, हमारा सब होगा जो भी है चीजें। बट टिल टुडे आसाम जो है वो सारी चीजें अभी भी देख रहा है ना। वहां करेक्ट पे तो, बिकॉज दे आर नाउ डिक्टेटिंग टर्म्स टू द गवर्नमेंट। यस दिस इज द पॉइंट, इज दे आर स्टिल डिक्टेटिंग द टर्म्स टू द गवर्नमेंट। और आज भी वो हमारे यहाँ पे नहीं लेके, इंडिया का पार्ट होने के बावजूद भी देखो क्या हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को भी बदलना चाहिए था ना उनको। बिल्कुल बदलना चाहिए था मैम। तो क्यों नहीं किया मोदी जी ने? अगर इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी तो काफी सारे अमेंडमेंट्स लेके आके चिपका दिए गए ना। तो ये मैम पर चीज को, हमारी आर्मी भी तो वही उनको प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो तो यही तो तो बात है ना।
वो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता मैम? हाँ एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि आपको वो कंफ्यूजिंग नहीं लगता कि ये हमारी आर्मी भी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। आसाम हमारी इंडिया का भी स्टेट है, इंडिया को ये है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी सीआरपीसी अपनी आईपीसी लेकर अपने आप को एग्जम्पशन में लेके जा रहे हैं, और तो उसको हम लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया पर इस पॉइंट को मैंडेटरी चेंज नहीं किया गया। आज भी हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं कि स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज जो है, अगर उसको लेकर हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो उसको लेकर नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में जाहिर हो जाएगा। तो अब क्यों नहीं लाया व्हेन ऑलरेडी द लॉज वाज चेंजिंग? नो। मैम अभी फिर वैसे ही हो रहा है ना जैसे पीओके हो रहा है। यस, यस अभी वैसे ही हो रहा है। इसीलिए तो मैं चिढ़ रही हूँ ना कि हम लोग जो पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर, वही चीजें तो यहाँ पे लेके आई गई है जिसका तो कोई यही नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट दे कुड हैव चेंज टू दिस ना, दे वुड हैव ब्रॉट आसाम एंड एवरीथिंग हियर, और उसको चेंज कर देना चाहिए था। मैम मतलब हम लोग जो ट्राइबल्स नहीं हैं, जो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, ऑन द स्ट्रीट्स नहीं आते हैं, तो मारकाट पीआई नहीं फाइल करते करो हैं, ना, तो पीआई फिर फाइल करो ना हम सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग लाइक हमको जबरदस्ती भेड़ चाल में डाला जाता है। और हाँ वो लोग जो भाले बच्चे पॉइजन एरो स्टार्स और डार्ट्स लेके आते हैं, उनको आप अलग रखोगे क्योंकि यू डोंट वांट देयर मिसचिफ टू स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। करेक्ट, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फॉर दिस थिंग यू विल हैव टू कम अप and raise a PI against the Supreme Court to come to these pointers also. Otherwise, we are gone. मतलब फिर करेक्ट। तो ऐसे ही हो गया ना, we are again into the dictatorship. We are again into that what we were before. That time they were foreigners. Now it is though Indian, but we are coming under that area where we are going to come in a very big problem. ये laws जो दिख रहे हैं ना, ये लोग हमसे मैम ये पूछते हैं। ट्राइबल देखिए मैम, हर स्टेट में ट्राइबल है। हर स्टेट में ट्राइबल्स एमपी हैं, में भी यस। है, यहाँ पर भी हाँ, महाराष्ट्र में भी है मैम। है ऑफ तो कोर्स, इसीलिए तो हमारे मैं चिल्ला ट्राइबल्स रही हूँ। इसमें आएंगे और उनके ट्राइबल्स इसमें नहीं आएंगे। नहीं आएंगी, यही तो बात है, लेकिन तो वो इसको लेकर प्रोटेक्शन जरूर बोला। लेंगे। हमारी भाषा अलग है, हमारे होने मॉन्यूमेंट्स दो ना, अलग है, वो सब तो वो होने दो, लेंगे। होने दो ना, होने दो ना, और होने दो ना। टैक्सेस भी हम ही प्रोवाइड करें उनको हमारे ही शेयर से। हाँ, हमारे तो ही ये शेयर क्या से हम। लॉजिक हो गया मैम? यही तो बात है, इसके लिए तो मैं आपको चिल्ला रही हूँ यहाँ पे कि व्हाई डोंट वी फाइल पीआई अगेंस्ट दिस ऑल पर्टिकुलर फैक्टर्स, कि वाई अभी तक क्यों? अगर तुम बदल रहे हो तो अच्छी तरह से बदलो ना। दूसरे लोग क्या होंगे? यस सर, क्योंकि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं राम मंदिर बन रहा है तो एवरीबडी हैव टू कीप क्वाइट। पीपल हैव गॉन मैड, दे हैव गॉन क्रेजी जस्ट बिकॉज राम मंदिर आ रहा है। ये विकी, ये आजमी जी जो है वो क्यों फोन कर रहे हैं? हाशमी क्या नाम है? विकी वो बोल रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाशमी जी मैम जो आवाज कह रहे सही हैं है कि मैम। आवाज नहीं आ रही है। तो कर ली है। आवाज आ रही है मैम पूरी। है ना, पता नहीं वो बोल रहे हैं, फोन भी किया अभी चलते हुए क्लास में, तभी मैंने पूछा। ठीक है, चलो। यहाँ तक आपको भारतीय नागरिक हमारी सुरक्षा संहिता के बारे में मैंने आपको फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेनेशन तक बता दिया है। आगे हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे। मैम ठीक है। शायद ये सीएए का इशू में ले आएंगे शायद से, हाँ कुछ हाँ, एरिया लेके शायद, आएंगे। मुझे लगता है। हाँ हाँ लाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग रेज अप नहीं करेंगे ना, ये लोग तब तक वैसा नहीं लेके आएंगे जैसे हम चाहते हैं। वो लोग वैसे रेज नहीं करेंगे, उस पॉइंट को आप देख लेना। हाँ, एट द एंड उनको